Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Climate Action Pakistan's new webinar. This is a webinar series जिसमें हम हर month के third Monday को मिलेंगे. We'll be live for 1 hour, and every month we will have different invited guests, and we will be asking them questions about different topics. So in the format of these webinars we will be focusing more on questions, and we welcome as many questions as you can ask in the like 60 minutes time. So आज का जो हमारा topic है, that is SUSI, which is the study of United States institutes in United States, of course. And today the invited guest is Shehryar. Shehryar has been selected for SUSI 2 times for the interview, and currently he is studying under the Global Youth program in USA. So just to make it a nice announcement for the next month, our invited speaker is Mr. Abdul Fattah Jamro, and our topic is very interesting. The topic is how to get into a PhD program abroad just after doing your BE or your BS. So essentially, in globally, masters is no longer required to get enrolled into a PhD. And next month on 3rd November, third Monday of November, which is 18th of November, we will be meeting Mr. Abdul Fattah. So we can begin our discussion about this. So for SUSI, public policy making is a very essential topic, and I understand that it's really different and difficult to just like, क्योंकि मैं अपने perspective से बताती हूँ, जब मैं उस स्टेज पे थी when I was applying for SUSI आज से कोई 8-9 साल पहले, मुझे बहुत कम अंडरस्टैंडिंग होती थी कि हाउ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग वर्क्स इन पाकिस्तान. लेकिन थिंग्स आर नॉट the same way in Western countries. वहाँ पे youth and especially women, they are given much more importance to be part of the public policy making. अब उसमें especially youth and students, और उनका जो perspective होता है, you're not expected to have a professional level understanding of public policy making. आपसे उतना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है जितना के आप में होना चाहिए, ठीक है, स्किल्स होने चाहिए टुवर्ड्स एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस. और अच्छा, इस पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि SUSI इज नॉट जस्ट एन लाइक एकेडमिक और एक्सचेंज और कल्चरल एक्सचेंज. आई मीन इट इज कल्चरल एक्सचेंज, बट इट्स मोर फोकस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग. अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आई डोंट थिंक सो आपको सिलेक्शन भी होगा, और आपको अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड एट ऑल. It's not just like you apply career to go and visit to US, but you should have genuine interest. Or maybe you can build your interest if this program interests you. So there are so many ways. आप जो है कोई journals पढ़ सकते हैं. I'm just giving you some examples के जो youth और students हैं वो Western countries में किस तरीके से जो है public policy के ऊपर काम करते हैं. Okay, so that's part of the policy. So it is like a very basic requirement of your eligibility. So like it's easier to say in eligibility check yes or no, but then it's really important कि आपको genuine interest हो, जो कि show हो जाएगा, reflect हो जाएगा आपकी application से. IT से related जो है इस वक्त ग्लोबली बहुत ज्यादा जो है फोकस है AI की पॉलिसीज के ऊपर. So Ali can use that example and I can help you much more in case आपको सेशन के बाद भी एसेस बनाने हैं या फिर like not बनाने में, लेकिन I can help you with the review and give you ideas. तो इस वक्त AI has suddenly, not suddenly, but हमारे पास इस वक्त AI की बहुत सारी applications हैं. And for example, when ChatGPT came, there were no policy in any university कि अगर कोई student अपनी applications और अपनी assignments के लिए ChatGPT use करता है तो how to treat with that. Even we didn't have tools
कि हम उसको डिटेक्ट कैसे करें। जब पॉलिसी नहीं है, टूल्स ही नहीं है, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टेक एन एक्शन ऑन दैट, और it was a flaw in the system. Okay, so I expect that candidates already know that this is the application portal. जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो इस तरीके का आपका अकाउंट खुलेगा। मैंने अपना डमी अकाउंट बनाया है। Of course, I'm not eligible and not intending to apply for this, but this is just for the demonstration process. Okay. So I came into this page. I'm applying for Susie. इसके अंदर सबसे पहले एलिजिबिलिटी प्रोग्राम इंफॉर्मेशन है, ऑफ कोर्स, जिसके अंदर एफएक्यूज हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए, like who can apply or not, and then eligibility check है, and I would highly recommend कि आप eligibility check के अंदर honest रहें, and मैं ये recommend करूँगी कि अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। even if you don't get into this program, you'll learn a lot from the process. So Sharia, ये 5 इसके parts हैं, मैं one by one इनको खोलती हूँ and you can brief about जी how not to make mistakes. जी। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि आपको एक एक पॉइंट पे ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि एलिजिबिलिटी में ऑनेस्ट है हर जगह, तो ये ऐसी जगह है यहाँ पे जो है ना आपको पेनल्टी भी किए जा सकते हैं अगर आप किसी जगह पे डिसऑनेस्ट रहेंगे और आपके प्रोसेस आगे जाके आप सिलेक्शन तक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये माइंड में रख लें। तो ये चीज़ तो ये सिंपल फॉर्म है कि आपको अपने नाम वगैरह फिल करने हैं, प्रीफिक्स में आप मिस्टर लगा दें या मिस लगा दें और सिंपल नाम रख के आगे जो अपनी बेसिक डिटेल्स हैं वो फिल करें। Okay. And then it's the citizenship and this very basic contact information. उसके बाद ये है contact information and your district and so on. आपका email address just make sure कि वो सही होना चाहिए क्योंकि सारी communication आपकी उसी पे होगी. बिल्कुल। Yeah, and then is the third part. जी, अब यहाँ पे आके अगर आपने किसी ने ट्रैवल किया है यूएस, देखें अगर बहुत से लोग जा चुके होते हैं ना छोटे-छोटे प्रोग्राम्स पे, तो जो है ना आप बिल्कुल यस लगाएँ, अपने आप को जस्टिफ़ाई करें कि मैं किस लिए यूएस गए थे या गया था। देखिए, ये इश्यू है कि आप अगर वहाँ पे इमिग्रेशन के अप्लाई कर चुके हैं या किसी और चीज़ के अप्लाई कर चुके हैं, फिर ये आप प्रोग्राम आपके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये है, ये आप दिमाग में कंसिडर कर लें और बाकी अगर आप कभी नहीं गए हैं, तो सिंपल नो नो लगा के आगे चलें। और ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर बताएँ अपनी, मैंने भी बताई थी अपनी, हर किसी ने बतानी होती है। ट्रैवल हिस्ट्री से कोई झिझक नहीं है, आप अमेरिका भी गए तब भी बताएँ, लेकिन नो इश्यू। जी, ये वही ना जस्टिफिकेशन देनी होती है कि आप किस लिए कहाँ गए थे। Okay, this is the candidate experience section. हुँ। अच्छा, इसमें ये है कि आपको मतलब फाइनल सेमेस्टर वाले तो लिख नहीं सकते, ठीक है? तो अब वो अपने क्या कहते हैं, जो सिंपल सेमेस्टर है वही लिखेंगे, या अगर जो ईयरली सिस्टम है, वो ईयरली अपने बता दें कि या तो ईयर वाइज़ लिखते हैं, जैसे सेकंड ईयर में सेकंड ईयर लिख सकते हैं, थर्ड ईयर लिख सकते हैं। अगर वो नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने देखा है एक एप्लीकेशन प्रोसेस में कि सेकंड ईयर सेकंड ईयर लिखा नहीं जा रहा, तो मैंने कहा अगर आप सेकंड ईयर के स्टार्टिंग फेज में हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर लिखें, अगर आप सेकंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर फेज में हैं तो फोर्थ सेमेस्टर लिखें। तो मैंने ये भी रिकमेंड किया था। बाकी इतना ज़्यादा इशू नहीं है, इसके अंदर मेजर फील्ड वगैरह लिखें, अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का नाम लिखें और नीचे अगर मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं इसमें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ऊपर आप थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर, इससे वॉलंटियर एक्सपीरियंस से पहले कुछ हाँ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है,
उसके बाद जब आता है कि अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे आती है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होता है कि अपने इंस्टीट्यूशन का नेम, ठीक है। आपके कौन सी डिग्री है, आप पहले स्टार्ट करेंगे मैट्रिकुलेशन से। आप मैट्रिक के बारे में लिखेंगे कि मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कराची से जो है ना मैंने मैट्रिक किया है, और डिग्री टाइटल मेरी मैट्रिकुलेशन है, ठीक है। ईयर इन स्कूल, आप किस साल से वहाँ पे स्कूल जा रहे थे, ठीक। कब से, मतलब कि एक्सपेक्टेड है मैं 2014 से मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है। और वहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपने क्या किया, आप साइंस लिख दें, कुछ साल लिख के सिटी कराची लिखकर एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट, क्या कहते हैं, आपने अगर ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप पुरानी डेट लिखें जिस पे ग्रेजुएट हो चुके हैं, और ग्रेड और जीपीए लिखते हैं कि मैंने वहाँ पे ये हासिल किया। उसके बाद जब आप फिर इंटरमीडिएट लिखेंगे, एफएससी, उसका भी सेम एग्जैक्ट ये है कि सबसे पहले इंस्टीट्यूट लिखें, फिर डिग्री टाइटल, फिर साइंस, फिर जो है ना सॉरी मेडिकल या इंजीनियरिंग, इस तरह करते हैं। अपनी ग्रेजुएशन डेट बताएं और जीपीए। उसके बाद जो है ना लास्ट में अपने अ, जो अपनी जो करंट वो है उसको दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर ये बात है वॉलंटियर एक्सपीरियंस और वर्क प्लेस, और नीचे लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। देखिए, वॉलंटियर में और एक्स्ट्रा करिकुलर में एक फ़र्क बड़ा ये है कि वॉलंटियर उस चीज़ को कहा जाता है जो आप किसी और के लिए या क्या सोसाइटी के बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें आपको अपना गर्ज नहीं होता, आप अपने उससे क्या कहते हैं निकल के आप कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं किसी राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं जो है ना ब्लड ड्राइव में जा रहा हूँ, या कोई और काम करो जिससे किसी और को फायदा हो रहा है, मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो उसे हम कहते हैं वर्क वर्क और वॉलंटियर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे अपने जो है ना वॉलंटियर वर्क लिखें, जो अपने कम्युनिटी सर्विस दी है या चीजें दी है, या फिर कुछ भी काम किया हो बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी पैसों के, उसे वॉलंटियर कहा जाता है। तो आप वो यहाँ पे लिखें, ठीक है। उसके बाद जब एक्स्ट्रा करिकुलर चीज आती है, वहां पे फिर आप अपनी चीजें आती है आपकी, आपने अपने पर्सनल करिकुलर से अलावा हट के आपने क्या क्या किया है। जैसे मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स के लिए है, अपने ऐसे डिबेट्स इन चीजों में हिस्सा लिया है, या क्या कहते हैं मैराथन में हिस्सा लिया है, जो जिस तरह भी हो, लेकिन वो आपके पर्सनल से ओरिएंटेड हो, ठीक है। तो ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर में आती हैं। किसी का हैंड रेस्ट था, अगर कुछ सवाल है तो you can unmute yourself and let me know if you can't unmute yourself. सर क्वेश्चन है मेरा कि सर जो इसमें लिखा है कि वर्क एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस, तो वॉलंटियर एक्सपीरियंस तो मीन कि हमने कोई फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन हमने कोई ज्वाइन की उसके बारे में लिखने हैं। तो वर्क में हम मीन हम स्पेसिफिक क्या करें? फॉर एग्जाम्पल सर हमने कोई इंटर्नशिप की है तो क्या वो उसमें इस पोर्शन में हम लिखेंगे वो? वर्क में, जी जी, वो वर्क में आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जी और या वो एक्स्ट्रा करिकुलर में लिख सकते हैं इंटर्नशिप के बारे में, क्योंकि वो अपने पर्सनल है ना, आप वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं नीचे। ठीक है। तो सर एक ये पहले भी क्वेश्चन था, ये मैंने मैम से भी किया था, तो मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। तो सर ये एलिजिबिलिटी चेक पे जब आया तो मीन की मेरी डिग्री जो सी है वो 2020 के नवंबर में मीन की स्टार्ट हो रही है, तो उसका ज्वाइंट पॉइंट है वो नवंबर 2025 से मीन की 5 ईयर प्रोग्राम है, और अब मैं 9th सेमेस्टर में हूँ। तो एलिजिबिलिटी चेक में जब मैं अपना नवंबर का ऐड करता हूँ या दिसंबर का ऐड करता हूँ, तो वो आ रहा कि आप यू आर नॉट एलिजिबल। जी लेकिन आप, अगर मैं तो अगर मैं 2026 का फर्स्ट मंथ ऐड करता हूँ उस पे आ रहा, तो मीन के साथ अगर हम 1-2 मंथ का अगर हमारा कोई गैप हम कर ले, एडजस्ट कर ले, तो इसमें कोई इशू तो नहीं होगा? हम यार इशू अप्लाई कर इस तरह सकते होगा हैं कि कि? आपके आपके जो एडमिशन लेटर्स होंगे, आपके ऑफिशियल लेटर्स होंगे, ठीक है। आप एंड में जब सबमिट कराएंगे वहां पे तो आप एडिट नहीं कर सकते ना। वहां पे आपकी एग्जैक्ट ग्रेजुएशन डेट लिखी होगी कि भाई ये बंदा, आपकी एग्जैक्ट ग्रेजुएशन डेट क्या है। सर मेरी जो स्टूडेंट कार्ड पे भी लिखी है वो नवंबर 2020 से नवंबर 2025 तक की है। तो इस हिसाब से आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपको या जब जून जुलाई में आप वापस करके आएंगे तो अगस्त के बाद आपको एक सेमेस्टर पूरा प्रॉपर होना चाहिए। एक बच्चे की है दिसंबर में ग्रेजुएशन डेट, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है। तो इस हिसाब से आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक सेमेस्टर एटलीस्ट चाहिए सेमेस्टर के बाद, प्रोग्राम के बाद। तो सर उन्हें मीन के सिलेक्शन के बाद कौन से
डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ते हैं जिसके बेस पे वो हमें पास हो सके। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ते हैं, उन्हें वीज़ा प्रोसेस में जाना पड़ता है। और ये याद रखें कि डुप्लीकेशन कुछ भी करना, आपके ये क्या कहते हैं डिग्री कैंसिल होना, ये सब कुछ आपके खिलाफ हो सकता है, आपके खिलाफ पिटिशन कर सकते हैं ये चीज़ें। तो हमारे पास, मैं यहाँ पे अमेरिका आ चुका हूँ, मुझे अब पता चला कि हमारे पास यहाँ पे जो लोग सीधे साधे हैं, क्यों सीधे साधे हैं, यहाँ पे कानून और उसका खौफ बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग के पास हर चीज़ का जुगाड़ न, वहाँ पे भी मैं मतलब स्टूडेंट लाइफ में तो हमारे पास सिर्फ जुगाड़ ही नज़र आ रहे थे। यहाँ पे आके पता चला है कि हर चीज़ को यहाँ पे इतना सीरियस लिया जाता है। तो ख्याल रखें तो सर अपना। वो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह मांगते हैं, और जी इसके जी, अलावा सब और कुछ। क्या क्या है वो डॉक्यूमेंट? ट्रांसक्रिप्ट के अलावा आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं मांगते, वो नहीं मांगते, वो सब कुछ मांगते हैं, आपकी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं। सर मीन के हम एलिजिबल नहीं हैं। नहीं, आप एलिजिबल नहीं है अगर आपकी एग्जैक्ट डेट नवंबर 2025 है। जी सर, लेकिन अगर ये अप एंड डाउन, क्योंकि ईयर का लास्ट चल रहा है, तो 1 मंथ अप एंड डाउन तो हो सकता है, तो फिर इस बेस पे हम करें तो नहीं करेंगे वो? चलें, आप देख लें, मर्जी आपकी, लेकिन एटलीस्ट आपको वो तो दिखाना पड़ेगा ना। जी। आगे चलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा शरियार भाई, मैंने इसका पूछना था वॉलंटियर एक्सपीरियंस का। तो हम्म। इसको इसको लिस्ट डाउन किस तरीके से करना है कि हम एज अ लीडरशिप रोल के हिसाब से लिस्ट डाउन करते जाएं, या फिर हम डेट्स के हिसाब से लिस्ट डाउन करते जाएं, जैसे कोई पुराना है या कोई न्यू है, असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे भी हो। जो आपको पर्सनली अच्छा लगे ना, कि आप दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। या मैंने तो रैंडमली किया था, कोई मैंने डेट वगैरह फॉलो नहीं की थी, ठीक है। लेकिन ये आप लिखें, अच्छे डिटेल से लिखें कि क्या कहते हैं, मैंने जो है ना इस प्रोग्राम में ये वॉलंटियर वर्क किया था, मेरा इसमें जो है ना रोल ये था, और इस रोल में मैंने ये काम किया, और इस काम की वजह से मैंने ये सीखा, ये चीज़ें सीखी। ये अच्छे से डिफाइन करें और डेट्स वगैरह ज़रूर मेंशन करें। बाकी असेंडिंग डिसेंडिंग मैंने कुछ फॉलो नहीं किया था, बाकी अगर आप लिखें तो प्रोफेशनल लगेगा तो बिल्कुल। तो आपकी मर्जी। नहीं, जैसे अभी इसमें फॉर्मेट है कि वॉलंटियर वर्क लिखना है, उसका उसकी डेट लिखनी है, और भी कुछ लिखा हुआ था। अ, तो डेट तो लाजमी लिखनी है ना, एक्सपेक्टेड डेट, और वो सारी डेट्स लिखनी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, उसके साथ फिर हमने ये भी लिखना है कि हमने उसमें कौन सा रोल प्ले किया था। जी जी और जी, ये सब कुछ आपने लिखना है। जैसे फॉर फॉर एग्जांपल, अगर मेडिकल कैंप का ले लें, मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करवाया तो उसमें ये डेट होगी। देन फिर आगे हम ये भी लिखेंगे टारगेट पॉपुलेशन क्या थी और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं, और इस तरीके से। जी, आप अपने बारे में लिखें कि भाई मैंने वॉलंटियर वर्क किया था, उसमें जो है ना मैंने जो है ना पूरा कैंप अरेंज करवाया था, जिसके अंदर मैंने टीम वर्क सीखा था, डिसीजन मेकिंग सीखी थी। ऐसी चीजें लिखनी होती है, समझ गए आप। फिर उसके बाद इतना ज़्यादा डिटेल नहीं लगाएं कि वो जो इररिलेवेंट। हाँ, अच्छा ठीक है। और एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, जो इसी से रिलेटेड ही है। जैसे कैंप कैंप का मैं बता रहा हूँ, तो उसमें आप कह रहे थे वॉलंटियर वर्क में सिर्फ वो लिखने हैं जो पब्लिक के बेनिफिट में हो। हम्म। बट जो कैंप हमने अरेंज करवाया, तो वो तो हमारे बेनिफिट में भी तो है ना, लीडरशिप रोल प्ले किया है। और वो फिर देखें, बात सुने, वो जो है ना आपके सबकॉन्शियसली आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, ठीक है। आप इंटेंशनली जो है ना, आपका इंटेंशन क्या था ब्लड डोनेशन के अंदर, आप खुद को सीखेंगे या किसी थैलेसीमिया के मरीज को बचाएंगे। डेफिनेटली पेशेंट को। तो वो जो मेन जो है वो तो आपको वो है। उसके अलावा जिंदगी में आप कितने काम करते हैं जो क्या कहते हैं, साइड में आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तो वो सीखना जो है ना आपके बाय प्रोडक्ट चीज है। वो वॉलंटियर वर्क इसीलिए हर जगह काम मांगा जाता है कि बंदे ने कुछ ना कुछ जिंदगी में किया हो, तो वो कुछ ना कुछ ने सीखा है। चलिए ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। मैं ये इसी स्क्रीन पे रहूँ या नेक्स्ट पे जाऊँ? जी, इसी स्क्रीन पे रहूँ या नेक्स्ट पे जाऊँ? एक मिनट, इसमें क्या क्या है। Have you been awarded any scholarship or please provide जी details जी, about it? Yeah. स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप को लाजमी लिखे है इसके अंदर, जरूर, ठीक है, और डिटेल से लिखें।
और जो है ना और प्राउडली लिखें कि मैंने जिन्हें बचपन से अभी तक जो जो स्कॉलरशिप्स हैं सब लिखें, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और जो है ना प्लीज लिस्ट एनी स्कॉलरशिप में। अच्छा, मेंबरशिप एसोसिएशन का मतलब ये है कि आपने किसी चीज़ में अगर काम नहीं भी किया है लेकिन कम से कम आपके अंदर उसके अंदर एफिलिएट हैं तो लिख लें उसके अंदर कि मैं रिसर्च प्रोजेक्ट में एफिलिएट हूँ, ये एफिलिएट हूँ, ये सब कुछ उसके अंदर लिखें, नो इशू। Okay, so this is the last part. And I will request शेरिया कि इस पे आप बहुत briefly बात करें इन essays के ऊपर. Um, सही के बारे में ऐसे देखें उसने जो चीज़ें हैं हम लोग खुद लोगों को चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं है। मैंने 1 साल 2 साल मैंने अप्लाई किए, मेरी 2 साल सिलेक्शन हुई। किस लिए सिलेक्शन हुई मुझे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ का पता नहीं था, जो मैं यहाँ पे बाहर बाहर आके मुझे दोस्तों ने बताया कि यार एसओपी में ये चीज़ होती है, एसओपी में वो चीज़ होती है। मैंने जो सिंपल उन्होंने सवाल पूछे हैं मैंने उनके सिर्फ जवाब दिए, ठीक है। मेरे साल में 500 वर्ड्स का नहीं था, मेरे पास 250 वर्ड्स थे, तो एक अनफॉर्चुनेट थी बात, लेकिन चलने सही थी। तो अब शुरू करेंगे, इसमें लिखा है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर गोल्स इन अप टू 500 वर्ड्स, ठीक है। अब उसने जो 500 वर्ड्स में मांगा हुआ है, मैं हर चीज़ को सिंपल ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, अगर कोई कलम कॉपी लेके लिख ले तो उसकी अच्छा होगा उसके लिए। तो जो मेन जो आपका एसओपी होना चाहिए ना, वो आपका इन इन फर्स्ट लाइन पे होना चाहिए, टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर गोल्स इन अप टू 500 वर्ड्स, ठीक है। अब आप इसमें आप स्टार्ट करेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरी ज़ात क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे गोल्स क्या-क्या हैं, मुझे आगे विज़न क्या है मेरा, ठीक है? मैं पढ़ने क्यों आया हूँ, मैं पढ़ के क्या करूँगा? ये तमाम आपको सवाल खुद से पूछने हैं, ठीक है? एक मर्तबा आप जब इस चीज़ को मतलब कि वो कहते हैं ना खुद को तलाश करना, ज़िंदगी में बहुत बड़ा वो चीज़ होता है। तो ये एसओपी में भी आपको खुद को तलाश करना है, आपको अपने आप को खुद जज करना है, अपनी पर्सनैलिटीज़ को खुद लाना है आगे। अगर ये चीज़ आपने एक मर्तबा कर ली तो ये अगर आपने एसओपी आज लिख ली तो यकीन करें लिख के ले लें कि आज 2024 का दिन है, आपको ये पीएचडी स्कॉलरशिप तक बड़े-बड़े स्कॉलरशिप तक एसओपी काम आएगी। अगर आप आज जो है ना किसी और से कॉपी पेस्ट करके दूसरों से आइडिया चुरा के अपने बस नाम वगैरह लिखकर सबमिट कर देंगे तो इसका मतलब है आप जान छुड़ा रहे हैं। और फिर प्रोसेस से भी आप कुछ नहीं सीखेंगे, प्रोसेस में सिलेक्ट होना भी आपके लिए मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें तो आप स्टार्ट करेंगे। मैं तो जिन लोगों ने एसओपी नहीं लिखी है वो जो है ना अपने बारे में लिखें, अच्छे खासा लिखें। उसके बाद जो है ना अपने अपने आप को उस वो लिखने के बाद जज करें कि मैंने अपने बारे में क्या-क्या लिखा है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। तो स्टार्ट करें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कि आपकी जर्नी कैसी है, आपने क्या-क्या किया है ज़िंदगी में। उसके बाद अपने एकेडमिक एक्सीलेंस लिखें, अपने अचीवमेंट्स लिखें, ठीक है? अपने वॉलंटियर वर्क लिखें, आपके इंटरेस्ट लिखें। उसके बाद अपने विज़न लिखें कि मेरा विज़न ये है। अगर विज़न आपके करियर से अलाइन करता है, जो आपने प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड चूज़ की है, बीएस कोई चूज़ की है, इंग्लिश लिटरेचर, मेडिकल जो भी चूज़ की है, तो वो लिखें कि भई मैंने जो है ना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली है। उसके पीछे मोटिव ये था। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि मैं जो है ना एक पहाड़ी इलाके से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पे एक तो पहले से किसी चीज़ की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है और बाकी हर रोज़ क्या कहते हैं सैकड़ों अफ़राद जो है ना बीमार होते हैं, लोग बहुत से लोग फ़ौत कर होते हैं। तो मैं हेल्थ केयर सेक्टर को बचाने के लिए अपने इलाके से निकला हूँ। वहाँ पे मैंने फिर मेडिकल चूज़ किया है अपने इलाके की वजह से। और मेरा विज़न ये है कि मैं एक दिन अपने इलाके में अच्छे पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर सकूँ, अपने अच्छा हेल्थ केयर सेक्टर इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो इसलिए मैं निकला हूँ। ये मैं अपना विज़न बता रहा हूँ, अपना गोल बता रहा हूँ, ठीक है? एक मर्तबा ये तकरीबन आप 200 250 अल्फ़ाज़ पे अपने बारे में डिटेल से लिख लिया कि भई मैं स्कूल आ गया, मेडिकल स्कूल आ गया, यूनिवर्सिटी आ गया। वहाँ पे भी मैंने अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैंने ये वॉलंटियरशिप्स किए हैं, ये काम किए हैं और इनसे मेरी ये स्किल्स डेवलप हुई हैं, ठीक है? मैं मतलब कि बचपन से अभी तक एक्टिव ही रहा हूँ, एंगेज रहा हूँ और मैं विज़नरी पर्सन रहा हूँ, मैं हर जगह। तो जब वो विज़नरी का लफ्ज़ सुनेंगे, वो जहाँ पे डेडिकेशन का वर्ड सुनेंगे, उनके दिमाग में एक चीज़ आएगी लीडरशिप, ठीक है? लीडरशिप बताई नहीं जाती कि मैं लीडर हूँ। मैंने बहुत से ऐसे देखे आई एम वेरी एडमायरेबल इन माय दिस स्किल, आई एम लीडर, आई एम दिस। देखें लीडर कभी नहीं कहते कि मैं लीडर हूँ, ठीक है? वो उसको फ़ॉलो किया जाता है। ठीक है? उसके जो इस आप अपने आप को अगर लीडर शो कराना है तो आप इनडायरेक्टली अपने स्किल्स शो करें, जो स्किल्स वो होंगी आपके अंदर लीडरशिप की स्किल्स होनी चाहिए। जैसे आपके अंदर डेडिकेशन है, जैसे आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी है,
जैसे आपके अंदर विजनरी है, ये चीज़ें लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। अगर आप ये बताएँगे कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, तो जो पढ़ने वाला है वो आपसे 1000 गुना प्रोफेशनल है। वो समझेगा कि भई ये बच्चा ही लीडर है, इसके अंदर के सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो ये चीज़ आप बताएँगे एक मर्तबा यूनिवर्सिटी लेवल तक आकर, आपने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी में भी ये काम कर रहा हूँ और आगे मेरे ये ख़्यालात हैं कि मैं ग्रेजुएट होकर आगे अपने इलाके के लिए, अपने जो है ना मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। फिर आप कहेंगे कि अब आके आप ये जो छोटे क्वेश्चन्स हैं कि हाउ आई डू यू थिंक कि कम्पेटिटिव कैंडिडेट फॉर सूसी-प्रो, ठीक है? अब यहाँ पे आप आके इन सवालात पे जंप करेंगे। देखिए, अपने बारे में तो आपने सब कुछ लिख लिया, ठीक है? जो मेन चीज़ होती है आपके सिलेक्शन की, वो आपके अपने बारे में होती है, ठीक है? ये जो सवाल नीचे दिए गए, ये हर कोई इनको रट्टा मारेगा कि हर कोई इनको डीपली बताएगा कि मैंने ये किया है, मुझे सिलेक्ट करो, मैंने वो किया, मैंने सिलेक्ट किया। लेकिन आपने अगर अपने आप को अच्छे से जस्टिफाई कर दिया, वो बंदा नीचे वाली चीज़ें पढ़ेगा भी नहीं। वो समझ जाएगा कि भई ये बंदा है, इसमें क्वालिटीज़ हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फिर उसके बाद आप आराम से रखें कि भई मेरे जो विज़न है, मेरी चीज़ें हैं, मेरे इलाके में बेहतरी जो चीज़ें आएँगी लाएँगी, उस वजह से मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ मेरे लिए सेल्फ वर्थ नहीं है, बल्कि मेरे इलाके के लिए भी सेल्फ वर्थ है प्रोग्राम। मैं अमेरिका जैसे इदारे में जाके वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग सीखूँगा, वहाँ पे जिन लोगों से मिलूँगा, वहाँ के एकेडमिक कल्चर और कल्चर एक्सपोज़र लेके वहाँ पे जब वापस आऊँगा, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं कॉम्पिटिटिव हूँ। देखें, ये अल्फ़ाज़ मेरे हदीस नहीं है, इसको आप जिस तरह जस्टिफ़ाई करना चाहें करें, अपने आप को जितना आपको यूनिक लगना चाहे करें यूनिक। मेरे तरीके पे बिल्कुल स्टक ना रहें, ठीक है? ये मेरा अपना पर्सनल तरीका है। लेकिन इसको आप लोगों को सबको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, इस फ्रेमवर्क में आपको जो लिखना है आप लिखें, जो आपको पर्सनली आपको अच्छा लग रहा हो। इज़ इट ओके? Yep, perfect. यस। ठीक है। व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोग्राम? आप क्या कर सकते हैं? आप एक सिंपल सी क्रिटिकल थिंकिंग करें कि आप एक बंदा है 20 से 22 साल की उम्र का, उसके पास क्या हो सकता है कंट्रीब्यूट करने के लिए? आप एक अमेरिका जाएँ, आप मिलियनेयर तो हैं नहीं, आपके पास कोई बड़े-बड़े बंगले तो हैं नहीं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आप बोलेंगे भाई जो मेरे स्किल्स हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो कल्चर है, मैं वही एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट करूँगा, मेरे पास और कुछ नहीं है। और ये चीज़ नेचुरल लगती है। ठीक है, आप ये चीज़ बोलेंगे, ठीक है, ये छोटा सिंपल सवाल है कि मैं अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस जो आपके एक्सपीरियंस है, जो आपके स्किल्स हैं, मैं वो शेयर करूँगा और उनसे सीखने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और हाउ विल यू पार्टिसिपेशन इन एक्सचेंज अफेक्ट योर लोकल कम्युनिटी रीजन? देखिए, मैं पहले आप लोगों को पहले सवाल में बता चुका हूँ कि इसका आंसर भी मैं पहले दे चुका हूँ। अगर आप इसका आंसर ना भी दें, तो आप जस्टिफाएबल हैं। उनका मकसद ये नहीं कि आपके प्राइमरी स्कूल की तरह हर सवाल का अलग से सेक्शन बना के जवाब देंगे। उनको इनडायरेक्ट अल्फाज में भी आप अगर जवाब दे दें, तो नो प्रॉब्लम। आपको कहीं पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि ये इस सवाल का यहाँ पे मैंने जवाब लिखा हुआ है। आपने बस इनडायरेक्टली लिखने जाना है, एक प्रोफेशनल अंदाज में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, ठीक है? तो आप ये लिखेंगे कि भई मेरे आने से अगर मैं यहाँ पे पढ़ के आऊँ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, वहाँ पे यहाँ पे आके काम करूँ, अगर एक हेल्थ केयर सेक्टर भी मेरी वज़ह से बेहतर हो जाए, तो वहाँ से कुछ लोगों की जान बच जाए, तो वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है, मैं वही कंट्रीब्यूट करना करूँगा। हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस अफेक्ट योर पर्सनली एंड प्रोफेशनली? तो देखिए, ये चीज़ भी पहले से मैं कह चुका हूँ कि अगर आप स्टार्ट को अच्छे से जस्टिफाई करें कि मैं अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहता हूँ, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकल के मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाके हेल्थ केयर सेक्टर को देखूंगा और वहाँ से लोगों को मिलूंगा, तो मेरी नेटवर्किंग होगी, मेरी जो है ना क्या कहते हैं पॉलिसी मेकिंग पे मेरे स्किल्स अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे जब आऊँगा, तो मैं जो है ना एकेडमिकली भी मतलब कि ग्रो करूँगा कि जो है ना मेरे एकेडमिक्स भी वहाँ के स्कूल्स को देखकर बेहतर होंगे और मैं प्रोफ़ेशनली इस तरह ग्रोथ करूँगा कि मैं पॉलिसी मेकिंग में मुझे क्या कहते हैं सलाहियत होगी। मैं जहाँ पे मतलब कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर इंटरेस्टेड रहूँगा। आगे भी जाके अगर मैं मास्टर्स वग़ैरह करना चाहूँ, तो वो मेरे लिए सीवी पे भी अच्छा लगेगा और जो है ना मैं किसी और अच्छे इदारे में पब्लिक पॉलिसी पढ़ सकूँ। तो ये तकरीबन तमाम चीज़ें थी इसके बारे में, ऐसे के बारे में। ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहिए हमें या क्या मेथड होना चाहिए पर्सनल स्टेटमेंट का? जी, जी, आप इसे पैराग्राफ लिखें, तकरीबन 4-5 पैराग्राफ लिखें क्योंकि अब तो वर्ड्स ज़्यादा हैं, तो जो है ना आप इसको मसला नहीं, आप पैराग्राफ की शेप में ही लिखें। कम से कम 7-8 पैराग्राफ हों, तो मतलब क्यों बन रहा होता है। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो? मैंने तकरीबन तमाम एस्पेक्ट्स बता दिए हैं जो मेरे ज़हन में थे।
क्या हम इसको ChatGPT को प्रॉम्प्ट देख के दिखा सकते हैं स्टेटमेंट, या फिर अगर ये ट्रैक हो गया कि ये ChatGPT से या AI से दिखाया गया तो ये इफेक्ट कर सकता है? देखिए हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम चैट जीपीटी को और जगह लगाते हैं। खैर मैं खुद भी आजकल ये कर रहा हूँ, चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेकिन इशू ये है कि चैट जीपीटी को अगर आप यूज़ करते हैं, सिर्फ आइडिया लें, ठीक है, आइडिया से ज़्यादा अगर कुछ लेंगे, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो प्लेजरिज्म भी आएगा, एआई डिटेक्टर भी आएंगे, ये सब कुछ चीज़ें आएंगी। तो इस चीज़ का ख्याल करें। अगर चैट जीपीटी से लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट करने के लिए भी, तो दोबारा एआई डिटेक्टर से चेक करें कि उसके अंदर एआई डिटेक्शन तो नहीं आ रही, तो दोबारा उस पर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन वो आपकी पर्सनल चीज़ पे, आप उसमें जो है ना, आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकेंगे, अपने आप को और क्या कहते हैं, ग्रो नहीं कर सकेंगे। वो आपकी Um, अपनी will है, आपकी yeah, I अपनी would मर्जी। just add one note to that कि जो आपके पास फ्रीली एआई डिटेक्टर होते हैं वो इतने पहली बात तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन ही, I'm sorry to say but ये क्वेश्चन ही गलत है। टेक्निकली यू शुड नॉट बी यूजिंग, और आपका सवाल था कि मैं प्रॉम्प्ट देखिए उसको ऐसे लिखवाऊं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। यू कैन गेट आइडियाज, यू कैन लर्न अबाउट इट। तो डिटेक्शन के लेवल पे देयर आर लाइक एजेंसीज और यूनिवर्सिटीज जिनका ये डे टू डे डेली बेसिस का काम है, दे हैव प्रीमियम वर्जन ऑफ टूल्स जिससे वो डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जिनके पास टूल भी नहीं है, जिन लोगों का डेली का काम है एसेस पढ़ना, लाइक टीचर्स, हालांकि मैं बहुत कम असेस करती हूँ, लेकिन आई कैन से विद कॉन्फिडेंस क्योंकि मैं खुद एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर उस टूल को यूज कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ देख के बता सकती हूँ कि ये ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट है या फिर एआई जनरेटेड टेक्स्ट है, बिकॉज एआई जनरेटेड टेक्स्ट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड इट्स वेरी सिंपल टू डिटेक्ट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि जिस तरीके से आप यूज करेंगे उसी तरीके से चैट जीपीटी इज और एनी अदर एआई जनरेटेड टेक्स्ट इज अ फ्री टूल, उसी तरीके से बाकी 2000 लोग भी यूज कर रहे हैं, तो इट्स वेरी लाइकली कि आप 2000 लोगों का, उनमें से जो 1000 लोग चैट जीपीटी यूज करेंगे उन सबका ऐसे डिट्टो सेम होगा। तो लाइक तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेप 1 में ही अपनी एप्लीकेशन आपकी वो cancel हो जाए, reject हो जाए, and if you want to make the selection process easier for them, then please use ChatGPT. अगर वो सब करने के बाद भी if you didn't attend my previous webinar about the motivation letters and all, उसमें हमने throughout यही एक बात डिस्कस की थी कि how in motivation letters आपको अपनी कहानी बतानी है, and that's really not possible कि वो आप किसी एआई जनरेटेड टूल से करवा सकते हैं। So just be aware. Sharon, we can move to short questions, and so technically we have 5 minutes left, but we can extend it to 10 more minutes. So you can continue with the short questions and then we'll do the final parts. मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर शरियार ये यू ग्रेड पे है बायर जी इस या इस वक्त टाइम? वो यू ग्रेड पे है, लेकिन he was selected for SUSI interview 2 times, so he kind of have an idea कि interview में क्या होता है or what kind of essays would lead you to interviews, and he was also selected for U grade, of course, so he was for U grade पे। ओके। Shreya, are you there? जी जी मैं यहाँ पे जी। जी, you can continue with the short answers. अच्छा, शॉर्ट आंसर्स। मैं पहली बात तो ये है कि शॉर्ट आंसर्स का बहुत ज़्यादा रोल तो इतना ज़्यादा नहीं है मैं समझता हूँ जितना, लेकिन जितना एसओपी का है वो 60 to 70% आपके पूरे एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनमें ये है कि आपकी वो थॉट प्रोसेस को चेक कर रहे होते हैं कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप किस तरह की सोच रहे होते हैं, ठीक है। आप पॉलिसी के बारे में मुझसे बच्चे इतने ज़्यादा पूछे होते हैं कि भाई ये मुझे पॉलिसी कहाँ से मिलेगी, मैं पॉलिसी को कहाँ से ढूंढूं, क्या क्रिटिक करूं, इसमें तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। देखिए कोई पॉलिसी भी यहाँ पे 100% तो है नहीं जिसपे आप क्रिटिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो पॉलिसी कोई भी आप उठाएंगे, ठीक है, उसके अंदर आपकी जो क्रिटिक होगी वो ये देख रहे होते हैं कि आपकी क्रिटिक किस तरह है, कि आप किस तरह पॉलिसी को एनालाइज कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे होते कि आप किस लेवल की पॉलिसी की उठा के किस चीज को देख रहे हैं। अगर आप एक एजुकेशन सेक्टर को भी उठा लें एक मरतबा,
उसके अंदर ये बोलें कि भाई एजुकेशन ठीक 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 नहीं है, तो आप वो ये देख रहे होते हैं कि एक बच्चा मतलब कि जो इमेच्योर माइंड के साथ आता है, वो एजुकेशन को कैसे देख रहे होते हैं, भाई टीचर्स नहीं आते, ये मसला है, वो मसला है, वो मतलब ऐसी बातें करेगा। लेकिन जो प्रोफेशनल बंदा होगा, जो मसलों को सही से जांच सकता है, जो जिसे हम लीडर कहते हैं, वो जो है ना मसले के डेप्थ में जाएगा, वो जो है ना मसले के असल जो इशू होगा उस पे जाएगा कि भाई हमारे पास जो पॉलिसीज हैं वो क्या कहते हैं बड़े टाइम से चेंज नहीं हुए, आउटडेटेड हो चुकी हैं, ठीक है। हमारे पास चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास स्कूलिंग सिस्टम यहाँ पे फेल हो रही है। तो इसको मैं इम्प्रूव में कैसे करूँगा कि मैं इसमें डिजिटलाइजेशन लाऊंगा, अटेंडेंस को क्या कहते हैं मेंटेन करने के लिए मैं हर स्कूल को डिजिटलाइज करूंगा, टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा, ये सारी चीजें आप देखेंगे। तो ये चीजें मैं सिर्फ एक मिसाल छोटी सी दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने खुद जो है ना जेंडर इनइक्वालिटी पे लिखी थी। तो ये सारी चीजें आप कोई भी पॉलिसी को लेकर सिर्फ लिख सकते हैं कि भाई ये पॉलिसी है, इसका ये इशू है, और इसके अंदर मैं ये सोल्यूशन ला सकता हूँ। तो इतने ज्यादा इशू नहीं है इसके अंदर। और ये Yeah. जो है सॉरी, ये जो है ना लीडरशिप के ऊपर है मेरे ख्याल से। अ, जो प्रोग्राम है वो क्या कहते सवाल है। हेलो। Yep. Any questions? ये Sure. अच्छा, मैंने लीडरशिप के ऊपर बात नहीं की जी. कि लीडरशिप के ऊपर आपने लिखा है कि भाई क्या कहते हैं डिस्क्राइब एनी एसेंशियल ट्रेट ऑफ लीडर एंड प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ दिस टाइम यू डेमोंस्ट्रेट लीडरशिप इन योर कम्युनिटी एंड अचीव एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये बहुत सी सिंपल सी चीज़ है, मैं कोई कॉम्प्लेक्स इसका एग्जांपल नहीं दूंगा। तो आप इसको सिंपली आपके अगर आपको लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं पता है, तो एक बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी ये है टीम वर्क, ठीक है। बाकी आप गूगल पे सर्च करते रहना या किताब कोई पढ़ लेना कि लीडरशिप के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है। एक बहुत बड़ी टीम वर्क होती है, ठीक है। अब लोग बोले मैंने लीडरशिप जिंदगी में की नहीं, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान में लीडरशिप की कैपेबिलिटीज ना हो। इंसान ने हर इंसान एक एक तरह किसी न किसी फील्ड में लीडर होता है। तो आप अगर ये भी लिखते हैं कि मैंने जो है ना लीडरशिप के अंदर टीम वर्क होती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। आप बहुत ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे पे लोगों के पास कुछ नहीं होता। आप ये भी लिख दें कि मैंने जो है ना इतवार के दिन एक मैच अरेंज करवाया है, उसके साथ अपने दोस्तों के साथ ले गया, और यहाँ पे मैंने एक मैच खेला, और वहाँ पे मैं जो है ना कैप्टन का रोल वो कर रहा था, और हमने टीम वर्क करके अपनी मैच जीता। ये भी आपके इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। लेकिन आप इसको इतना जस्टिफाई कर सकते हैं, इतना विजनरी लिख सकते हैं कि मैंने जो है ना लोग बचाए हैं, मैंने कोई ऐसी एफर्ट की है, मैंने ऐसा वॉलंटियर वर्क किया है जो मैंने अरेंज किया है, क्या कहते हैं मेरे विजन की वजह से, मेरी चीज़ों की वजह से। आप इन सब चीज़ों को आप जितना जस्टिफाई कर सकते हैं करें। छोटे से छोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने बारे में, और बड़ा से बड़ा लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कैपेबिलिटी कितनी है। आप ऐसे नहीं एसओपी में कुछ और लिख रहे हो, छोटी छोटी चीजें लिख रहे हो अपने बारे में, सिंपल लिख रहे हो, और यहाँ पे लीडरशिप में आके आप बिल्कुल तीस मार खां बन जाते हैं कि मैंने ये काम किया, ये क्या। तो अपने एप्लीकेशन को प्रॉपर ही एंगेज रखें कि आपने जो एसओपी में चीज़ें लिखी हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हों। यहाँ पे उसके लिखने आपके ऐसा नहीं ना हो कि एसओपी किसी और ने लिखी है, ये कोई और लिख रहा है, तीसरा सवाल कोई और लिख रहा है। तो और क्या कहते हैं आपके थॉट प्रोसेस, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। ये हमें यार आपको पता नहीं चल रही होती, लेकिन जो पढ़ने वाला होता है जिसको हर दिन तकरीबन हज़ारों एप्लीकेशन पढ़नी होती है, तो वो उसके सामने ये चीज़ें डायरेक्ट ब्लरी आ जाती हैं कि ये चीज़ तो क्या कहते हैं उसके रेड फ्लैग होती है। तो इन चीज़ों को सोच समझ के लिखें, डेप्थ में लिखें, क्या कहते हैं लीडरशिप के बारे में विजनरी होके लिखें कि मैंने ये बड़ा ये काम किया है। इवन मैंने जो है ना अपने बारे में ये लिखा था कि मैं जो मेरे इलाके में है, मैंने मेडिकल कैंप अरेंज करवाया है, और जो है ना मैं आगे भी करना चाहता हूँ कि मेरे इलाके में हेल्थ केयर सेक्टर बेटर हो। तो मैंने जो है ना क्या कहते हैं अपने डिप्टी कमिश्नर्स के साथ बात की है कि हमारे हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर ये काम, ये इश्यूज, ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो, और ये पहली पॉलिसी ना हो, ठीक है। तो मैंने मतलब मैंने इसमें ये कहा कि मैंने अपनी एफर्ट लगाई है, शायद मैं कर नहीं सकूं, लेकिन मैंने अपनी एफर्ट ये लगाई है कि मैं डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मिला हूँ, ठीक है। लेकिन वो बात ये थी कि मैंने वो सच बात लिखी थी, उसमें कोई झूठ बात नहीं थी, और मुझे पता नहीं था कि मैं सूसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं उसके अलावा भी मतलब मैं वो काम कर रहा था। तो अपने बारे में लिखें, ज़रूर लिखें। मैंने ऐसे जैसे लोग देखे जिन्होंने इतना बड़ा इशू नहीं, इतना बड़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सिलेक्शन हुई थी। तो माइनर से भी लिखें, मेजर से भी लिखें, सब कुछ लिख सकते हैं आप।
Okay, give one example of a public policy in Pakistan which you believe needs improvement. If you had the power, how would you change it to make it better or more effective? Maybe Shreya, you would give different thoughts, लेकिन मेरे thoughts इस क्वेश्चन के लिए ये होंगे कि जो भी students जिस भी background से belong करते हैं, they can like give their relevance. For example, if Ali belongs to IT, he can make a case of talking about AI policy or technology policy or anything. क्योंकि it just gives more relevance. हम random चीजों के बारे में बात करेंगे तो maybe it's not that effective. Your ideas can differ. Do you want to talk more on that? पॉलिसी जी Yeah. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने कहा लेकिन मैं इस तरह कहूँगा कि मैं जो बेसिक से कोई स्टार्ट करता है कि पॉलिसी पे चेंज लिखना चाहता है, ठीक है, उसको अपनी फील्ड में लिखने पहले तो कंसिडर करें मुझे कहाँ लिखना है, ठीक है, उसकी अपनी पर्सनल फील्ड कौन सी है। कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं मेडिकल, लेकिन उससे जो है ना वो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा शौक होता है। कुछ लोग एजुकेशन पढ़ रहे होते हैं हेल्थ केयर में, मतलब ये चीज़ें अपोजिट होती हैं, लेकिन इसको कोई भी इशू नहीं है कि आप इस वजह से आप क्या कहते हैं झिझक रहे हो कि मेरी फील्ड अलग है और मैं पॉलिसी मेकिंग पे लिखना चाह रही हूँ, और सॉरी हेल्थ केयर पॉलिसी मेकिंग भी लिखना चाह रही हूँ। तो नो इशू, आप जो आपके दिल में आ रहा है वो उस हवाले से लिखें और गूगल पे सर्च करें इसके बारे में आर्टिकल्स की पॉलिसी क्या है। पहले तो समझे पॉलिसी खुद क्या है, हमारे बारे में पता नहीं चलता पब्लिक पॉलिसी क्या है, एम ही आके बोल रहे होते हैं ये है वो है। भाई पहले आप सोचे कि पब्लिक पॉलिसी क्या है, फिर आपको आराम से मिल जाएगी। पॉलिसीज इतनी ज्यादा हैं कि हद से ज्यादा, मुझे समझ नहीं है इतने बड़े गूगल पे लोगों को नहीं मिलती पॉलिसीज। तो मैं आपसे भी वो लूंगा रिकमेंडेशन कि आप किस तरह सर्च करेंगे पॉलिसीज को। लेकिन मैंने जो सर्च किया था तो मैंने रैंडमली WHO के आर्टिकल्स पढ़े थे, यूनिसेफ के आर्टिकल्स पढ़े थे एजुकेशन के ऊपर, क्या कहते हैं और क्या कहते हैं सिंपल से जो रूल्स हैं रेगुलेशंस है वो पढ़े थे। पहले तो मैंने समझा था पब्लिक पॉलिसी क्या है, कैसे बनती है, किस तरह इम्प्लीमेंट होती है। उसके बाद जो है ना मैं किसी भी पॉलिसी के पर आपके जंग किया था। तो फिर जो है ना आप एजुकेशन सेक्टर पे आप आ जाएंगे या हेल्थ केयर सेक्टर पे आ जाएंगे, IT पे आ जाएंगे, किसी न किसी फील्ड में पॉलिसीज तो है ना, गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंप्लीमेंट की हुई है। फिर आप पॉलिसीज को देखें कि कितने हद तक वो जो है ना ठीक जा रही है, कितनी हद तक जो है ना वो कामयाब हैं, कितने हद तक जो है ना मसले। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क है, पाकिस्तान हमारी जान है, लेकिन वहाँ पे मतलब ऐसे मसले हैं कि यहाँ पे आप किसी एक पॉलिसी को आप 100% करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास वर्ल्ड का सबसे अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम हुआ है, पॉलिसी इतनी अच्छी है कि अमेरिकन से भी मतलब ज़्यादा वो टेरिटरी वगैरह बेसिक हेल्थ केयर यूनिट वो हमारे पास है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आती है तो फिर वही हमारे हॉस्पिटल्स में जानवर घूम रहे होते हैं। ये चीज़ें हैं कि आप इम्प्लीमेंटेशन बनने से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तमाम स्टेप्स को देखेंगे, कहाँ पे फ्लॉज हैं, कहाँ पे आउटडेटेड चीज़ें आ रही हैं। तो उस स्पेसिफिक स्टेप को भी आप इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है कि एक छोटी सी पॉलिसी पकड़ें, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें, इवन गूगल स्कॉलर भी यूज़ करें, उसके बारे में लोगों को पकड़ें जो आपके इर्द गिर्द CSS वाले कोई लोग होगा, या मतलब जो इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनसे पकड़ें कि भाई पॉलिसी के बारे में मुझे बताएं। तो ये सारी चीज़ें आप उनसे जब पूछ लेंगे एक बार तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा, आप फिर वो लिख सकेंगे। Okay, why do you think it's important for women to participate in public policy making? वाई दिस प्रोग्राम, मेरे बारे में तो ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये है कि आप ये लिखें कि हमारे पास वुमेन राइट ज़रूर हैं, मौजूद हैं, ठीक है, कुरान इस्लामी शरीयत के मुताबिक। लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है, जब हेल्थ केयर की बात आती है, जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है, तो हमारे पास वुमेन को प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं दी जाती है। अगर वुमेन जो है ना इस जैसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगा, उसके अंदर जो स्किल्स डेवलप होगी, वो यहाँ पे आके गवर्नमेंट लेवल पे काम करेगी, तो वो जो है ना एक जनरेशन को बचा सकती है, ठीक है। हमारे पास जो इवन जो पार्लियामेंट में जो वुमेन्स जाती हैं वो भी जो है ना फ्यूडल क्लास से होती है, हमारे कॉमन वुमेन नहीं होती। तो वो अगर एक आम लड़की या के जो भी है वो अगर पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्टेड है, वो आके यहाँ पे काम करेगी, तो वो हज़ारों लोगों की जान बचा सकती है, हज़ारों लोगों की लाइफ इम्प्रूव कर सकती है। तो इस तरह के कहेंगे जो क्या कहते हैं वुमेन है, उन्हें प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं जाता वैसे भी, और वो आप यहाँ पे आके आगे काम कर सकेंगे। तो ये मेरा सिंपल सा आंसर है, इसको आप जितना कॉम्प्लेक्स कर सकें करें, या जस्ट से आप उस 2 टाइम सेलेक्ट हुए हैं, इस टाइम की परेड पे भी हैं, तो बस सर अपनी
काइंडली कोई ब्रीफली अपनी प्रोफाइल के बारे में बताएगा ताकि हमें आइडिया हो कि हमें किस तरह से अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए, या असेस हम करें कि आया कि हम ये इन प्रोग्राम में सेलेक्ट हो चुके। तो अपनी ब्रीफली थोड़ा प्रोफाइल रिव्यू करिएगा ताकि मोटिवेशन हमें उससे कुछ मिल सके कि क्या ऐसा खास है हमें कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं। यार सच बात तो ये है कि मैं कोई पहुंचा हुआ कोई बंदा नहीं हूँ, कोई मेरे पास इतना कोई ब्रेन वगैरह नहीं है। मैं सच बात बोलूँ तो मैंने स्टार्ट में भी बगैर कोई तैयारी किए चाहिए कोई एसओपी लिख दी थी, लेकिन मैंने एसओपी ये थी कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला था उस एसओपी में। जो मेरी लाइफ स्टोरी थी मैंने वही लिखी थी कि भाई मैं जो है ना स्ट्रगल्स करते करते यहाँ पे पहुंचा हूँ, आगे भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। तो ये जो अपनी लाइफ स्टोरी है, मैं क्या कहते हैं वही मैंने लिखी थी। अगर आप मेडअप कर रहे हैं तो मेडअप भी इतना इतना मेडअप जो है ना एक अनएथिकल चीज है। ठीक है, लोग मेडअप स्टोरीज डाल रहे होते हैं, मेडअप चीजें डाल रहे होते हैं, फिर वो आपके इंटरव्यू के दिन आपके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती। ठीक है, फिर क्या फायदा आप जो चीजें लिखेंगे, अपनी सीवी बिल्ड करेंगे। तो ये है कि मैंने अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं था इन एक्सचेंज प्रोग्राम का, मैं वैसे ही जो है ना क्या कहते हैं मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं जहाँ पे होता हूँ एक्टिव ही रहता हूँ, मुझसे वो नहीं होता। तो मैं जब अप्लाई करा था तो मेरे पास 3-4 सर्टिफिकेट्स थे और स्टोरीज थी कि मैंने ये काम किया ये काम नहीं किया। और जो मैंने एसओपी भी लिखी थी वो भी मैंने अच्छे से रिसर्च की थी, गूगल वगैरह से, यूट्यूब पे इसकी अच्छे से यूट्यूब से वीडियो देखी थी। एक मरतबा मैंने खुद को खुद समझाया था कि ये चीज़ ये है, पॉलिसी मेकिंग ये है। मैं तो इंटरव्यू तक मैंने कोई सेशन नहीं देखा था, लाइव सेशन वगैरह। लेकिन उसके बाद जब मतलब आप लोगों को तो फिर भी अपॉर्चुनिटीज मिली, मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। तो मैंने जो है ना अच्छे से पहले रिसर्च की है एसओपी के ऊपर, एसओपी के ऊपर समझा कि एसओपी कितनी टेक्निकल होती है, कितनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और कहाँ पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो ये एक मरतबा आप प्रोसेस से गुजरेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं भी कहता हूँ अगर आपके साथ लक हो, आपके घर वालों की दुआएं हो, तो ज़रूर आप भी हर हर प्रोग्राम में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको टेक्निकल होना पड़ेगा, आपको जो है ना टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं पाकिस्तानी, शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा। तो अगर आप किसी चीज़ पे काम करना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम टू वर्क ऑन योर एसओपी। उसके अलावा अपने वॉलंटियर वर्क लिखें, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर लिखें, ये सारी चीज़ें। और अपनी आप किसी जीपीए ज़रूर मैटर करती है, ये झूठ है किसी जीपीए मैटर नहीं करती। हाँ, मेरी बारी में जो है ना मेरा एमबीबीएस है तो मेरे 73% थे। तो मेरे हमारे मेडिकल स्कूल में ही हम सबसे ज़्यादा नंबर यही दिए जाते हैं, हम उससे ज़्यादा नंबर दिए ही नहीं जाते। तो मेरे स्कूल से जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो मुझसे कम वाले सिलेक्ट हुए हैं। तो इतना बड़ा इशू नहीं है इसका। लेकिन ये है कि आप अगर किसी कम्पिटिटिव इदारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पे एवरेज सी जीपीए 3.9 है, 3.8 है, और आपके 3.2 है, तो ये आपके लिए मैटर करता है। Okay, Sharyar, thank you so much for your time.